Hi guys, today I am here with I'll speaking part 2 question answer discussion. Actually, this is the main video on the discussion. So discussion on the topic that this is very like question which I saw in my comment section. Nitin Goyal, he asked me a question 3 days ago: how global warming man-made? So this is the question under my video I uploaded like few months back. Key points on global warming. This is the question he raised. So this is one question, but one of my students, while during my online speaking session, one of the students, he asked me about same question in another way. The another way is how global the Nitin Goyal asked me how global warming man-made, and that student, another one, he asked me about are human causing global warming. So both questions are the same. So first you need to understand this question. What is the question? The requirement of this question is how global warming man made, कि कैसे जो global warming है वो man made है. और the second question which the another student asked, that is also the same. Are humans causing global warming means first के अंदर कैसे और क्या, सेकंड के अंदर क्या ह्यूमन जो है वो रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का. तो आज हम इसी के ऊपर जो टुडेज so answer is on this discussion topic is this. So today I'll give you the answer of this one, and if the examiner also can ask you these kind, because this is one of the question, very important question, anybody can ask you how global warming is man-made. So because so many people are just thinking about, no, this is not the man-made, this is natural. So but many of the people thinks, or half of the like world population thinks that this is global warming and this is man-made. How? Now today we will discuss about this. So before starting this discussion, if you are new on this channel, please do subscribe this channel, because here you can get the right like this discussion topics, and you can also get a chance to do free speaking with us. Okay, if you want to do free speaking, then you need to subscribe this channel. Now let's get discuss this question. If examiner asks you about this question, how global warming man-made or are humans causing global warming, then you should start first like this. It is like very likely, it is very likely, we don't know, but here's some partially related human activities which are responsible for global warming. Okay, so इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज़ अ स्टार्टिंग वे. ओके, और अगर आपने अनदर वे से ओपनिंग करनी है लाइक दिस वे, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे टू डिटरमाइन इफ any climate change is even partially means some extent, आप एग्री करते हो इस चीज़ को, रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, आप इस तरह से भी बोल सकते हो. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. First, we all know that CO2 means carbon dioxide. Okay, carbon dioxide, the stuff we are emitting into the atmosphere while burning fossil fuels. That is, fossil fuels क्या करते हैं, जब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उस तरह का जो स्टफ़ है, पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा आप रिलीज़ करते हैं उतना ही क्या होता है, हीट ट्रैप होती है. सो trap heats, and carbon dioxide from fossil fuels has been measured as increasing in the atmosphere. We all know that more कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स मोर हीट. तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतनी ज़्यादा हीट होगी जनरेट. ओके, तो उतनी ही ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है. सेकेंड थिंग, आवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट 300%. अगर आपने फिगर बोलनी है देन इट इज़ ओके, अगर नहीं बोलनी देन इट इज़ ऑल्सो ओके. तो आप बोलेंगे आवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 300% सिंस 1950 अप टू 7.8 billion 8 billion people. So अगर आपको फिगर बोलनी है देन इट इज़ ओके, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से आवर पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज, दैट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. बिकॉज हम सभी क्या
ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं. अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर हीट, ओके, हीट ट्रैप्स एंड देन अगेन दिस इज अ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. So next, cutting down forest for agriculture releases CO2 from the soil. Carbon dioxide again मिट्टी जो है वो release करती है, that is also the cause of global warming. Next, burning soil fuels. जो भी आप फॉसिल फॉइल्स जो फॉसिल फ्यूल्स जो है बर्निंग करते हैं, जैसे गैसोलीन और इवन कोल्स को आप ऑयल जनरेट करते हो या नेचुरल गैसेस, और इवन कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. This is also measurable for global warming. This is also the cause of global warming, okay? Or burning coal to generate electricity, burning oil to power vehicles and aircrafts, or burning woods. These all are the cause of, again they all are generating carbon dioxide, and carbon dioxide traps air, and that is also cause of global warming. And in fires used for cooking or to provide heat etc., changes the state of stored organic carbon from the liquid, example like oil, or solid like coal or wood, into a carbon dioxide which releases into the atmosphere. That is also big cause of global warming. Okay, so I'm just giving you the points. तो points को आप बोलोगे तो उसके साथ जो है आप explain कर रहे हो, इन points के थ्रू आप बता रहे हो कि क्या क्या रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग के, और क्या किस तरह से जो है, एक तो होता है नोइंगली और अननोइंगली, किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, एक्चुअली ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए. ओके, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक्स मीन्स खाओ जो जितने भी आपके जो कल्टीवेट करते हो आप. रेयरिंग इज़ अनदर मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, एंड राइस कल्टीवेशन इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ मीथेन. ओके, सो ये सब गैसेज जो है, दिस ऑल आर द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इंक्रीज्ड यूसेज ऑफ एयर कंडीशंस जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो द बिग cause, big problem, like big reason of global warming. And ocean acidification is another reason, because of increased and release of greenhouse gases. The ocean has absorbed too much of greenhouse gases. This has resulted in the reduced intake of greenhouse gases emission by the ocean. So that is also the big cause of global warming. Okay, so ग्रीन हाउस गैसेज आर लाइक ट्रांसपेरेंट. बट अभी क्वेश्चन जनरेट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस, व्हाट इज़ GHG. ओके, जो हम बात कर रहे हैं GHG और ग्रीन हाउस गैसेज की, एंड वाई डू दे आर इफेक्टेड टू अवर इन्वायरमेंट. तो वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट के लिए, अभी क्वेश्चन ये जनरेट होता है जब आपने इतने सारे रीज़न को रीड कर लिया तो आपको समझ एक क्वेश्चन जनरेट होगा, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस गैसेज. सो ग्रीन हाउसेज क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज आर ट्रांसपेरेंट ऑफ टू इनकमिंग, मीन्स की शॉर्ट वेव्स जिसे हम कहते हैं, रेडिएशन फ्रॉम द सन, बट ब्लॉक इंफ्रारेड मीन्स लॉन्ग वेव्स रेडिएशन फ्रॉम द लिविंग द अर्थ्स एटमोसफियर. ओके, सो क्या है जो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, इसके अंदर आप इस चीज़ को समझिए कि लॉन्ग और शॉर्ट वेव्स जो आ रही हैं और जा रही हैं, तो उससे क्या उस चीज़ का जो हम इतनी गर्मी छोड़ रहे हैं और वहाँ से जो हमें मिल रही है, जो रेडिएशंस मिल रही हैं वो, और जो हम गर्मी इतनी छोड़ रहे हैं वो जो एटमॉस्फेयर के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, दिस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स ट्रैप रेडिएशंस फ्रॉम द सन एंड वार्म्स द प्लैनेट सरफेस. तो वो जो हमारी सरफेस को इतना, क्यों हम बोलते हैं कि इतना गर्मी हो रही है, क्यों हम बोलते हैं कि एकदम से कोई देश जो है वो इतना ठंडा ठंडा हो गया, कोई है वो इतना गर्म हो गया. अभी जैसे अमेरिका में ही हम बात करें तो टेक्सास के अंदर, जबकि जहाँ पे बिल्कुल भी सिर्फ कभी स्नो का नाम नहीं सुना था, वहाँ पे इतना ज़्यादा स्नो थंडर आया हुआ था, और यहाँ पे भी एक स्नो बाज़ार था अमेरिका में. और अभी जैसे लास्ट 2 वीक्स बिफोर यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अगर बाहर कोई गाड़ी के जैसे टायर्स फ्लैट हो रहे थे जब वो रोड के ऊपर चल रही थी, मीन्स कि इंडिया में 49-50 डिग्री जो आपका सेल्सियस कभी मैंने कभी सुना नहीं है वैसे, तो
होगा तो वैसा टेम्परेचर जो था यहाँ पे, जबकि इतना कूल एरिया है ओरेगन, यहाँ पे इतना ही था। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है अमेरिका इतना ठंडा है, तो वहाँ पे भी हमें इतना ज़्यादा गर्मी जो है वो देखनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग। तो सरफेस जो है वो जो चेंजेस हो रहे हैं वो सब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है। एज concentrations of these gases increases, more warming occurs than would happens naturally. Okay, सो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसी का ही एक रीज़न है, इसी तरह से वो इन्वायरमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। ओके, सो एट लास्ट अगर आप हम सम अप करें इस टॉपिक को, तो हम अब सम अप कैसे करेंगे? अगर आपने एंड में, अगर सपोज आपको और कुछ नहीं बोलना, तो सिंपल वे में आप कैसे बोल सकते हैं? टुडे मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल इश्यूज आर कॉज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर बिग ट्रीट टू इन्वायरमेंट। ओके, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो एसी हम चला रहे हैं, चाहे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, चाहे फैक्ट्रीज में हम कोल बर्न कर रहे हैं, या फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, सो ये सब क्या है? These activities lead to climate change. For example, greenhouse effects, the emission of greenhouse gases increased highly. Okay, तो gases बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो increase हो रही हैं, that is a cause of global warming. So this is the result in global warming. People's improper activities are the prime reason of the climate change. Okay, सो जितनी भी अभी एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो ये एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट जो है वो प्राइम रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज। और जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है, तो उन सब का जो रिज़ल्ट है वो है ग्लोबल। पीपल्स इम्प्रॉपर एक्टिविटीज़ आर प्राइम रीज़न फॉर द ग्लोबल और द क्लाइमेट चेंज। ओके, तो जितना भी हम क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं, जहाँ पे गर्मी की गर्मी और सर्दी सर्दी, कहीं पे तो पूरा जैसे कह लो कि ड्रॉट आ गया है, तो दैट ऑल बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो दिस इज़ द सम अप ऑफ योर क्वेश्चन, नितिन गोयल। दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो now, if you are new on this channel, please do subscribe this channel, and if you have any question, write me down in the comment section. I will definitely resolve your issues. And thank you very much for watching this video, and please do subscribe this channel and share this video. If you like it, then give me a thumbs up and share with your friends also. Okay, and if you want to do free speaking with me, then you need to subscribe this channel, and I'll definitely get you back. And you can also email me on my mail ID, getsuccess66@gmail.com. Okay, thank you very much for watching this video till the end, and thank you.